Sharad Gupta is a structural consultant, and he is a very, very well-known structural consultant. Sanrachna Consultants is a firm that he's running, and the firm has been running for the last 20 years. Since 1999, he has been practicing, and he has been working on all possible structures, structural rehabilitations, repairs, new structures, malls, housings, not just in India, but in a lot of other countries like Nepal, Nigeria, and so on and so forth. So today, Sharad is going to help us understand how do we work on the repair and rehabilitation of RCC structures. See, RCC is a new material, and RCC structures nowadays, because of improper construction practices or lack of specification, are undergoing a lot of flaws, and we cannot always take down the complete structure and put up a new one. So we have to understand that how this process has to be undertaken and what are the parameters which signify that there is a repair required. How is the rehabilitation strategy? So this lecture becomes very important from the perspective of sustainability and economy of material, and also practices which help rehabilitate our buildings and cities after the lifespan or while the lifespan of the structure is shortened. So I welcome Sharad Gupta, and I would request the director, Professor Vivek Sabharwal, to say a few words. Yeah, I think, I was going through your resume, Sharad. It's, I'm amazed by the kind of experience, diversified experience that you have. And I'm sure it'll be very beneficial to our students when they learn through the nuggets of wisdom that you'll be sharing. And for students, especially there's a mix. Let me just tell you, there's a mix of final year students and third year students who are attending this. Of course, there are few faculty also. That this spectrum of learning about RCC structures and the possibility that RCC structure has to offer, and especially this dimension of retrofitting or rehab of structures, is a new something which students are not much aware of. So once you elaborate on that, I'm sure students will it will help them understand. So without taking much of your time, Sharad, over to you. You may start your presentation. Thank you for joining us today. Thank you. Screen share कर दीजिएगा. नहीं हमारा दिख रहा है. इसको फुल स्क्रीन सर. यस, स्क्रीन दिख रही है. इसको फुल स्क्रीन मोड पे कर दें अगर, तो आपका साइड के छोटे स्क्रीन्स नहीं दिखेंगे. Yes, that's it. Myself, Sharad Gupta. I am giving you the presentation regarding the retrofitting of the RCC buildings. Our flow is going like that. Why retrofitting is required? कि हमको retrofitting building में चाहिए क्यों होता है? दूसरा, what is retrofitting? कि retrofitting होता क्या है? तीसरा स्टेप ऑफ, मतलब अगर हम जो रेट्रोफिटिंग कर, दोनों ही स्टेप्स के बाद में हमारे पास है कि हम कैसे एवल्यूएट करते हैं किसी बिल्डिंग में रेट्रोफिटिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. ये फोर्थ है मेथड ऑफ रेट्रोफिटिंग के मेथड किस किस तरह से हम बिल्डिंग को रेट्रोफिट कर सकते हैं. लास्ट में कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से ये रेट्रोफिटिंग दिखता है करने के बाद में. व्हाई इज रेट्रोफिटिंग रिक्वायर्ड में सबसे पहला 2 मेजर रीजन होते हैं. किसी भी बिल्डिंग को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 2 रीजन होते हैं जिसके कारण से फेलियर होता है. एक तो इम्प्रॉपर डिजाइन कंसिडरेशन होता है, दूसरा इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें मेजरली 20% रीजन होते हैं जिसके कारण से हम कि ये मेरा एक टेंटेटिव फिगर है जिसमें कि 20% रीजन होते हैं कि डिजाइन फेलियर होता है और 80% रीजन होते हैं जिसके कारण से कंस्ट्रक्शन इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कारण फेलियर होता है. नेक्स्ट है इम्प्रॉपर डिजाइन कंसिडरेशन में. इसमें क्या होता है, कई बार मार्केट में प्रैक्टिस में लोग अर्थक्वेक के जो फोर्सेस होते हैं
उनको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि स्टील का कंजम्पशन अर्थक्वेक फोर्सेस लेने के कारण बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, कई बार फ्लोर मार्जिन्स में, जैसे बड़ी बिल्डिंग्स में तो कम होता है, पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इंटरनल चेंजेस के कारण कहीं टॉयलेट चेंज हो जाता है, या पहले जो डिजाइन के टाइम कंसिडरेशन करते हैं कि हम फ्लोरिंग में टाइल लगाएंगे, बाद में हम उसमें पत्थर लगाने लग जाते हैं, और उसके अंदर से कई बार टॉयलेट्स के पाइप भी पास करते हैं फ्लोरिंग से, और वो डिजाइनर को डिजाइन के टाइम पे नहीं पता होते हैं, तो ऑलमोस्ट उसकी लोडिंग 1.5 से 2 गुना हो जाती है। उस कारण से भी कई बार फेलियर होते हैं। तीसरा ये होता है कि हम कंसिडरेशन में, डिजाइन कंसिडरेशन के टाइम पे हम किसी मेजर बिल्डिंग में हम ब्लॉक वर्क कंसिडर करते हैं, जिसका ब्लॉक वर्क का वेट बहुत कम होता है, और उसमें हम ब्रिक यूज कर लेते हैं। तो उन दोनों में ऑलमोस्ट 1/3 वेट का अंतर होता है, उसमें भी वो होता है। और दूसरा, छोटे प्रोजेक्ट्स में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन चेंजेस बहुत सारे होते हैं रेजिडेंसेस के कारण, कि हमने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर दिया, डिजाइन करने के बाद में क्लाइंट को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहीं कॉलम हटवाया या बीम शिफ्ट कराया, तो उस कारण से भी हमको रेट्रोफिटिंग की बिल्डिंग में जरूरत होती है। जैसे अभी इसमें सिस्मिक फोर्सेस में जब हम करते हैं, तो मेजर रीजन यही होता है कि कई लोगों को कॉस्ट सेव करनी होती है, उस कारण से नहीं करते हैं। दूसरा, एक ना लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, एक शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, 2 डिफ्लेक्शन होते हैं बड़े भी उसमें। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन नॉर्मल डिजाइन के टाइम पे लोग बाग चेक नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को जब हम बिल्डिंग से शटरिंग खोल लेते हैं, किसी भी आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम शटरिंग खोलते हैं, उसके बाद में कई सारे लोड्स आते हैं, उस पे फ्लोर लोड आता है, डेड लोड होता है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ के बाद में, या फिर साल 2 साल के बाद में, जब उसके अंदर बिल्डिंग में लोडिंग चेंज होती है, लोडिंग बढ़ती है, और कुछ टाइम के बाद में कंक्रीट की ना अपने आप स्ट्रेंथ कम होती है, कुछ टाइम बढ़ती है फिर कम होने लगती है। जब कम होती है तो उस टाइम पे भी डिफ्लेक्शन होते हैं, उस कारण से भी बिल्डिंग में हमको क्रैक्स अपीयर होते हैं। तीसरा एक रीजन होता है टॉर्शन। ये टॉर्शन बड़ी बिल्डिंग के अंदर होता है। हमको नॉर्मल केसेस में कभी भी जब बिल्डिंग डिजाइन करनी होती है, तो हमको ये देखना चाहिए कि हम कोई भी बिल्डिंग, सर्कुलर बिल्डिंग कोशिश करके डिजाइन ना करें। दूसरा, बिल्डिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, अगर हमारे पास प्लॉट साइज ठीक है तो हमको स्क्वायर बिल्डिंग डिजाइन करें या फिर रेक्टेंगुलर करें, और अगर रेक्टेंगुलर करें तो उसका रेशो कोड में दिया है कि हमको किस उसमें करना है। जितना हम बिल्डिंग को ऑक्टागोनल शेप में करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में जब हम डिजाइन करते हैं, तो बिल्डिंग में ना टॉर्शन क्रिएट होता है। और टॉर्शन क्रिएट होता है इसलिए कि जैसे हमारे बिल्डिंग का जिस साइड में ड्यूरिंग अर्थक्वेक किस डायरेक्शन में हमारा अर्थक्वेक का वेव्स आ रही हैं, और हम बिल्डिंग को ना 2 डायमेंशनल डिजाइन करते हैं। जो 2 डायमेंशनल का मतलब हो गया, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अगर हमने फोर्सेस डिजाइन किए, नॉर्मल केसेस में हम 2 डायरेक्शन में डिजाइन करते हैं, और हमारा 3rd डायरेक्शन से अर्थक्वेक आया, तो हमारी बिल्डिंग में ना अपने आप ना बिल्डिंग को घूमने की टेंडेंसी होती है, जिससे टॉर्शन क्रिएट होता है। और उस कारण वो टॉर्शन, अगर हम उसको टॉर्शनल फोर्सेस को एब्जॉर्ब करने के लिए बिल्डिंग को डिजाइन करेंगे, तो उसके कारण से भी स्टील बहुत सारा कंजम्पशन बढ़ जाता है। लोग बाग डिजाइनर इसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि कंजम्पशन कम करनी होती है। ये मैंने आपको नॉर्मल डिजाइनिंग के प्रोसेस बताए। बड़ी बिल्डिंग्स में कोशिश करके कोई लोग बाग ये नहीं करते हैं, बट छोटे में जो होते हैं उनमें यही कारण होते हैं। इसके बाद में हमारे पास ये इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है, इसमें कि लोग बाग जब हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, अभी आपने देखा होगा शायद द्वारका में ना ऑलमोस्ट जितनी बिल्डिंग बनी है उसमें 60-70% में डिटोरेशन हो रखी है और स्टील खराब हो चुका है। उसका मेजर रीजन वाटर है। अगर हम किसी भी कंस्ट्रक्शन को जब यूज करते हैं तो हमको एक तो पोर्टेबल वाटर यूज करना है, दूसरा जितना हम सीमेंट के ऊपर फोकस करते हैं उतनी हमको इस पे करना है, वाटर पे। अगर पीएच वैल्यू 6 से ज्यादा होगी वाटर की, तो ये अपने आप टाइमिंग पहले पहले बिल्डिंग हमको ठीक दिखेगी, फिर इसमें डिटोरेशन होने लग जाएगी, जिसके कारण से बाद में हमको ये होता है, मतलब रस्टिंग क्रिएट हो जाती है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमें कंस्ट्रक्शन में वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके कारण से ये रेट्रोफिटिंग रिक्वायर होती है। दूसरा, सैंड का भी होता है। सैंड हम लोग बाग लेके आते हैं हम मार्केट से और डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। उस सैंड में अगर हम 8% से, हमारे पास एक, मैंने राइट हैंड साइड में आपको एक कोडल प्रोविजन लगा रखे हैं कि आप 8% से कभी भी सैंड में ना जो सिल्ट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, जब हमारे पास ये सिल्ट एक्सीड हो जाती है
तो सिल्ट के में जब भी वेदर कंडीशन चेंज होती है तो ना मॉइस्चर लेने की उसकी कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्ब करने की। और दूसरा सिल्ट कंटेंट ज्यादा होता है तो सीमेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं होती है। और हम इन दोनों चीजों को अगर वो नहीं करते, रिस्ट्रिक्ट नहीं करते 8% उसको, ये सिल्ट को, तो जब वेदर चेंज होगा तो हमारे बिल्डिंग के अंदर जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं उसमें एब्जॉर्वेशन होती है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद में उससे भी रस्टिंग क्रिएट होती है। और दूसरा, हम जो उसमें डस्ट स्टोन डस्ट मिक्स करते हैं उसका भी हमारे पास प्रोविजन है कि हमको कितना स्टोन डस्ट मिक्स करना है। हम 100% स्टोन डस्ट मिक्स करके अगर बनाते हैं तो उसके में कई सारे उसके बाद में दिक्कत होती है। तीसरा, ये स्टील कंपोजिशन भी होते हैं अलग अलग तरह, मतलब जो मिनिमम हमारे पास परसेंटेज है इसमें केमिकल कंपोजिशन है, डिसाइड है। आपने स्टील सुना होगा, दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी स्टील वो होता है जिसमें कि हम जितना तरह का ये कंसिस्टेंट हमको जो जो चाहिए केमिकल कंपोजिशन, ये हम अपने आप उसमें मिलाते हैं, उसके बाद स्टील बनाते हैं। और जो सेकेंडरी स्टील होता है, वो सेकेंडरी स्टील में हमारे पास स्टील बना हुआ आता है, उस स्टील में जो हमको कंपोजिशन कम लगता है उसको हम मिला देते हैं। तो हम जब हमारी किसी स्टील के अंदर ये कार्बन और सल्फर ज्यादा होते हैं, उस कारण से भी उसमें अपने आप रस्टिंग लगने लगती है। और रस्टिंग लगती है या फिर उसमें हल्के हल्के क्रैक होते हैं जब हम उसको मोड़ते हैं, बाइंडिंग करते हैं उस टाइम पे, तो वो बाद में धीरे धीरे वो बिल्डिंग को खराब कर देते हैं। फिर ये सीमेंट का, सीमेंट में हमारे पास ये OP3 OPC 43 ग्रेड का सीमेंट है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास फिक्स है कि इससे कम नहीं हो सकती, कि नॉट लेस देन, मतलब 72 आवर्स में 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये अलग अलग तरह का, ये हमको पोर्टलैंड सीमेंट में जब भी हमको ये यूज करना है तो ये चेक कर लेना है कि हमारा सीमेंट ठीक है या नहीं है। ये मैंने आपको बताया, जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अगर जब गलत यूज करते हैं तो हमारी बिल्डिंग को रेट्रोफिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, ये इम्प्रॉपर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि नॉर्मल पे हम क्या करते हैं, जब हम जो जैसे हमको M25 ग्रेड का कोई कंक्रीट यूज करना है, उसका हमने नॉमिनल मिक्स देखा और हम उसको बाय वेट मिलाते हैं, बाय वॉल्यूम हम मिला लेते हैं। हमको मिलाना, वो कंपोजिशन दी होती है बाय वेट, और साइड पे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करते। उसके कारण से भी हमारा मिक्सिंग कम होती है, गलत होती है, तो उसमें कभी पानी ज्यादा मिला देते हैं, कभी सैंड ज्यादा मिला देते हैं, तो उसके कारण से भी बाद में हमको कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ये रेट्रोफिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फिर ये इम्प्रॉपर शटरिंग, हम जो शटरिंग यूज करते हैं उस शटरिंग में कई सारे ना होल्स होते हैं, नीचे के साइड से कभी होते हैं, कभी साइड से होते हैं, जिससे हमारा सीमेंट स्लरी निकल जाता है और उसके कारण से बाद में हमको दिक्कत आती है। फिर एक एक कवर ब्लॉक है, कई बार हम कवर ब्लॉक कॉलम्स में, बीम में, स्लैब में प्रॉपर जो हमने कवर दिया होता है वो कवर यूज नहीं करते हैं। उस कवर को यूज नहीं करने के कारण से भी हमारे पास ये रेट्रोफिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा, ये लैब जोन, हमारे पास जो स्टील होता है उसी स्टील पे हमारे पास अलग अलग लेवल पे लैब जोन होते हैं कॉलम में, कि हम टोटल कॉलम की हाइट अगर हमारे पास 4 मीटर है, उस 4 मीटर में हमको नीचे से ऊपर 1/4 हाइट तक हमको स्टील में लैप नहीं लगाने हैं। उसमें भी लोग बाग स्टील कम करने के वेस्टेज ज्यादा होगा इसलिए उस लेवल पे भी लैप लगाते हैं, जिसमें अर्थक्वेक के टाइम पे या लोडिंग के टाइम पे वहां पे क्रैक डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, ये इम्प्रॉपर क्लियर कवर। तो क्लियर कवर है कि अगर हमने अगर कॉलम में 40 mm का क्लियर कवर चाहिए, तो क्लियर कवर कहने को तो देखने से ज्यादा स्ट्रिक्ट वो नहीं लगता है कि हम क्यों मेंटेन करना है, पर अगर हमारा जो स्टील है वो प्रोटेक्ट नहीं होगा तो वेदर के कांटेक्ट में जब भी आएगा उसमें रस्टिंग शुरू हो जाएगा। दूसरा, हम जो जो रिंग्स होते हैं कॉलम्स के अंदर, उन रिंग को प्रॉपर बाइंड नहीं करते हैं, या स्टील जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम वाइब्रेटर यूज नहीं करते हैं। इस कारण से भी बिल्डिंग में क्वालिटी खराब होती है। क्वालिटी खराब होने से हमको रेट्रोफिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैंने कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ जिसमें जहां जहां पे नीचे के साइड से सारा स्टील मतलब स्टील में रस्टिंग हुआ, स्टील में रस्टिंग होने के बाद में नीचे के साइड से ही कंक्रीट गिर गया। अब ये स्टील में हम कुछ भी करेंगे ये वो नहीं होगा, इसका मतलब ओवरऑल इसकी अपनी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 20 से 30% तक कम हो चुकी है। नेक्स्ट, ये कॉलम में आप देखेंगे, इस कॉलम में भी पूरा वो जंग लग गया है कि किसी किसी स्टील का ये साइज का देखेंगे बिल्कुल पतला पतला हो गया, ऑलमोस्ट 6 mm का जाके 4 mm 5 mm बचाए रिंग्स। ये कॉलम का वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी हमारा खत्म हो चुका है।
इसके बाद में ये कई बार संकन पोर्शन में आप देखेंगे वो कि संकन पोर्शन में इस तरह के क्रैक दिखते हैं, जो ये क्रैक्स पीछे अंदर इसमें वाटर होता है और उसके कारण से वाटर सीपेज हो रही होती है और ये क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये क्रैक्स डेवलप होते हैं जब अंदर स्टील में रस्टिंग हो जाती है, उसकी एक लेयर बन जाती है और वो लेयर थोड़ी रेगुलर सीपेज के कारण मोटी होती है और इस कंक्रीट और स्टील दोनों को छोड़ने लगती है। ये स्टेयरकेस में है, ये कई स्लैब्स के नीचे पूरा का पूरा स्लैब एक खत्म हो चुका है, इसके अंदर सारे स्टील में रस्टिंग है, नीचे का लेयर गिर गया है। अब व्हाट इज रेट्रोफिटिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रेट्रोफिटिंग हमने ये बता दिया क्वालिटी के कारण होती है, क्यों करनी पड़ती है। अब इसमें जो रेट्रोफिटिंग इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डैमेज और अनडैमेज स्ट्रक्चर सो एज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्डिंग्स में जो रहते हैं उन बिल्डिंग के अंदर हमको बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, या किसी पूरी बिल्डिंग के अंदर 2 कॉलम कोई खराब हो गए या 3 कॉलम खराब हो गए, तो उस कारण से अगर बिल्डिंग को डिमोलिश करेंगे तो कॉस्टिंग ज्यादा होती है। और कई बार ये होता है कि हमारे पास 4 to 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, बाद में FAR बढ़ गया या हमको यूजेज उसकी और ज्यादा करनी है, तो हमने पहले जो डिजाइन किया वो 4 स्टोरी के लिए किया, उसके बाद में हमको उसमें 1 या 2 स्टोरी बढ़ाना है, तो उस कारण से भी ये होती है जैकेटिंग, मतलब स्ट्रेंथनिंग करते हैं बिल्डिंग को कि जो नया लोडिंग आनी है वो लोडिंग इसमें हम अचीव कर ले। उस केस में हमको अगर स्ट्रेंथनिंग करनी होती है फिर तीनों चीज करनी होती, फुटिंग भी करने होते हैं, कॉलम भी करने होते हैं। कई बार हमको स्लैब स्ट्रेंथनिंग करनी होती है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है, उसमें हमने पहले जो डिजाइन किया होता है वो कम लोडिंग के लिए करना होता है, किया, बाद में फिर हमारा यूजेज चेंज हो गया या कहीं डेटा सेंटर आ जाता है, कभी बड़ी इंडस्ट्री हो जाती है उसी फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें हम फिर जैसे पहले लोडिंग हमने 500 kg के लिए किया, बाद में वो 1000 kg पर स्क्वायर मीटर की उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में भी हमको स्ट्रेंथनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों यही हो कि हमको लेटरल फोर्सेस बढ़ाने होते हैं, कई बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस मतलब इंक्रीज करने हैं, उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो हम ये रेट्रोफिटिंग करते हैं। अब ये स्टेप हम करते कैसे कैसे, अनंत सर अभी तक, हेलो? Yes, Sharad sir. हाँ, मैं So आगे it's, करूँ? yes, please. It's very clear. We are all listening very patiently और बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं. आप प्लीज समझाइए. Thank you. अब हम जो रेट्रोफिटिंग मतलब किसी बिल्डिंग को अगर हमको एनालिसिस करना है तो उसके ना मेजर 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। फिजिकल इंस्पेक्शन का ये मतलब होता है कि हमें किसी बिल्डिंग को अगर बाहर से अपीयर हो रही है कि इसमें छोटे छोटे क्रैक डेवलप हो रहे हैं या बड़े क्रैक डेवलप हो रहे हैं, तो हम फिजिकल इंस्पेक्शन करके, क्योंकि हमको ना पूरी बिल्डिंग को टेस्टिंग करनी होती है, तो टेस्टिंग करने पे हम हर स्ट्रक्चर एलिमेंट का टेस्ट नहीं कर सकते। हमको उस जितने स्ट्रक्चर एलिमेंट का टेस्ट करना है तो हमको कैटेगराइज करना होता है उस बिल्डिंग के अंदर कि टोटल मान लो हमारे पास उसमें 1000 कंपोनेंट है या 500 वो है टोटल स्ट्रक्चर मेंबर है, और हम टेस्ट कर सकते हैं कुल में 100 को 125 को, ये मतलब 25% हमको मिनिमम टेस्टिंग करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, टोटल बिल्डिंग को ना तीन उसमें डिवाइड कर देते हैं। एक तो जो मेजरली इफेक्टेड होता है, एक होता है जो बीच में इफेक्ट हो कि मान लो 50% इफेक्टेड हो रखा हो, और एक जो बिल्कुल इफेक्ट ना किया हो। तो टोटल बिल्डिंग को हम सर्वे करके सबसे पहले उसका उस फिजिकल इंस्पेक्शन के मोड में हम टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, जैसे हमारे पास 100 हैं तो 100 में से हम 50% कर लेते हैं पहले उस जगह जहां टोटल बिल्डिंग खराब हो चुकी है, 25% उस जगह करते हैं जहां पे बीच का है, और 25% करते हैं जहां ठीक है। ये तीनों अलग अलग टेस्टिंग करने की हमारी मेन पर्पस ये होता है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि बिल्डिंग में एक्चुअल इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, कि जब हमने बिल्डिंग शुरू की थी उसी टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब थी, तो अगर हमको जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि मिक्सिंग गलत होने के चक्कर में या RMC गलत आती है या काम पे ठीक से सुपरविजन नहीं हुआ, तो हमारा पहले ही M30 की जगह हमारा M20 M25 मिलता है। तो जहां पे हमारा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ तो होता है हम वहां से को टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल कितना है। उसके बाद में जो लेस इफेक्टेड एरिया होता है, जो हमारा ना इनसाइड होता है, मतलब मॉइस्चर के वेदर के कांटेक्ट में नहीं आता है, सेकेंडली वो इफेक्ट होता है, और थर्ड वो होता है जो बिल्कुल
वेदर के कांटेक्ट में आता है। तो हम तीनों से ये अंदाज लगा लेते हैं कि पहले बिल्डिंग कैसी थी, फिर बीच में 10 साल 15 साल टाइम हुआ तो कितनी खराब हो गई है, और जो पूरी खराब हो गई है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है बची हुई है। इस तरह के हमको डैमेज दिखते हैं। जैसे रेजिडेंस है तो इसमें ये नीचे बालकनी की साइड से हमको दिख रहा है, फिर ऊपर वाली में थोड़ा कम दिख रहा है, पीछे आप देखेंगे जहाँ लाइट ये लगी हुई है, फैन लगा है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसी को, ये जैसे मान लो कोई कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग है तो हम इसमें नंबर ऑफ टेस्ट इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। फिर कुछ ये कॉलम आप देख रहे हैं, जैसे लिफ्ट का कॉलम है, ये बीच में क्रैक है, ये क्रैक ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्रैक ना मेन स्टील में रस्टिंग हो गई है, और ये कवर चारों साइड से खराब हो चुका है, जिससे कि कवर हट जाएगा। पहले कंक्रीट का कवर हटता है, उसके बाद ये कॉलम बेंड होना शुरू होता है। नेक्स्ट है ये टेस्टिंग किस किस तरह से होती है। पहला एक रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, फिर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है, फेरो स्कैनिंग होती है, कार्बोनेशन टेस्ट होता है, कोर कटिंग होती है, और हाल्फ सेल पोटेंशियल टेस्ट होते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो करते हैं, पर मेजरली हम इन्हीं से बिल्डिंग को वो कर लेते हैं, एवोलेट करते हैं कि किस इन टेस्टों से क्या क्या हमको बिल्डिंग की उस टाइम की कैसी कंडीशन है। ये रिबाउंड हैमर का डेमो पीस है, जिससे रिबाउंड हैमर जो वो कहते हैं इसको, इससे हम करते कैसे हैं इसमें, ये इस तरह से, जैसे ये कॉलम लगा हुआ है, इस कॉलम में हम पहले ना इसका जो ये होता है कवर ब्लॉक होता है, कवर सारा होता है, हमको मदर कंक्रीट पे ही करना है हमेशा। कभी भी कवर पे करेंगे तो हम जिस जगह इसको पंच करते हैं ना उसी जगह का स्ट्रेंथ दिखाता है। तो हमको एक तो खराब कंक्रीट पे नहीं करना है जहां पे हमको स्टील कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में जो भी चीज आएगी ये उसी की स्ट्रेंथ दिखाएगा। कंक्रीट आएगी तो कंक्रीट की दिखाएगा, कवर ब्लॉक आएगा तो कवर ब्लॉक की दिखाएगा, अगर कोई कवर है मोटा प्लास्टर है तो उसकी स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो इसीलिए हमने नीचे आप देख रहे होंगे कि इन्होंने चिपिंग कर दी, पहले चिपिंग करके मदर कंक्रीट पे गए, और जहां कंक्रीट ठीक थी ना वहां पे किया इन्होंने। तो अब हर जगह जहां जहां पे इनको हम टेस्टिंग करते हैं, उस टेस्टिंग में सारी जगह से कवर हटाते हैं, कवर हटाने के बाद में इस सरफेस को साफ करते हैं, और फिर इससे रिबाउंड हैमर की रीडिंग लेते हैं। जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये प्रेस होने से हैमरिंग से इसकी ना रीडिंग आती है इस कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ है। इसके बाद में नेक्स्ट है ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। ये पल्स अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर से, इसमें हम क्या करते हैं, दो पोजीशन पे, इसमें ना 3 तरह का टेस्ट होता है, एक कॉलम का होता है, ये अपोजिट फेस में हमने इसको मीटर को लगाया, एक ये स्लैब का है जिसमें हमने इसको साइड से लगाया और ऊपर से लगाया। ये स्लैब पे हम 2 टेस्ट करते हैं, एक तो डायगोनल टेस्ट करते हैं, एक ऊपर से करते हैं। तो इन तीनों से, जैसे कॉलम में ये वेलोसिटी से हम ये अंदाज लगाते हैं कि कितना इस कंक्रीट पोरस हो चुकी है। अगर डेंस कंक्रीट होगी तो उसकी वेलोसिटी ठीक होगी, अगर पोरस होगी तो कम हो, ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा, वेव्स पास होंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी से वेव से हम इसको कोरिलेट करते हैं। इसके बाद में ये मतलब इसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है कि हमको पूरा कंक्रीट सरफेस स्मूथ चाहिए होता है, क्योंकि इस मीटर को हमने, जिसमें ना ये ऑलमोस्ट 2 से 3 इंच का इसका डायमीटर होता है, इसको जब हम सरफेस के ऊपर प्रेस करते हैं, इसमें ग्लू लगाते हैं जिससे कि स्मूथ सरफेस हो जाए। अगर इसके पीछे वॉइड्स होगा कोई भी ना, तो ये उस तरह की रीडिंग दिखाएगा। इसको बिल्कुल रेगुलर सरफेस चाहिए होता है और स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। तो दोनों साइड से, इस जैसे इससे ये लड़के का हाथ दिख रहा होगा आपको, इसके अपोजिट साइड से भी उसने यहीं पे लगाया होगा। तो कॉलम पे इन्होंने ये चेक करा, ये मीटर, इस मीटर से हम ये रीडिंग लेते जाते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी की। ये है हमारे पास फेरो स्कैनिंग। फेरो स्कैनर को हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसी पुरानी बिल्डिंग होती है जिसका हमारे पास स्टील का डेटा नहीं होता है। तो हमको स्टील अब उसमें पहले प्रोवाइड क्या किया हुआ था, हम किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए अगर हमको कोई कॉलम डिजाइन करना है तो उसमें हमको पुराना स्टील चाहिए होता है कि कितना डायमीटर है स्टील का और कितना कंक्रीट की स्ट्रेंथ है और कॉलम का साइज है। ये तीनों साइज होंगे तो हम किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हैं। अब ये फेरो स्कैनर ये होता है इसलिए कि हम इसमें कंक्रीट के अंदर से, आई एम सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई थी। आई थिंक इट्स बेटर नाउ। ये जो फेरो स्कैनर होता है इसको हम यूज करते हैं कंक्रीट में स्टील को स्कैन करने के लिए। ये नॉर्मल एक्सरे मशीन के जैसे ही होता है कि जिसमें कि हम इसको जब सरफेस पर रब करते हैं तो रब करने पे हमको मतलब स्क्रॉल करते हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में उसको स्कैन, जैसे ही इसको स्कैन कर लेता है फिर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हमको डायमीटर बताता है
कि इसमें कितना डायमीटर का स्टील डला हुआ है। इसमें इसका जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक में इसमें क्या दिक्कत होता है कि कोई भी जैसे 16 mm का डाया है तो ये ना एक डाया प्लस दिखाएगा या माइनस दिखाता है, तो हम इससे नंबर ऑफ बार तो उससे फिक्स कर सकते हैं कि 16 डाया मतलब कितने नंबर है, 8 है 10 है, फिर हम क्रॉस चेक करने के लिए इसको चिपिंग कर लेते हैं। तो चिपिंग करके हम एक दो जगह हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये 16 mm का स्टील अगर ये दिखा रहा है फेरो स्कैनर, तो साइड पे कितने का है वो, तो उसी के हम, क्योंकि ये बहुत सारे ना एजम्पशन बेस पे इसमें हमको काम करना होता है। जैसे मैंने आपको ये पहले बताया था रिबाउंड हैमर का, तो रिबाउंड हैमर की भी जो रीडिंग होती है वो रीडिंग नॉर्मल रीडिंग से हमेशा 10 से 15%, 20% तक एक्स्ट्रा आती है, क्योंकि कई बार वो स्टील पे टच कर जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ दिखा देता है, कई बार वो एग्रीगेट के ऊपर टच कर जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है। तो हमको ये पूरा का पूरा इससे 100% रिजल्ट पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, हमको एक क्रॉस चेक करना होता है कि जो उसने स्टील दिखाया वो कितना है, और उसके बाद एक दो जगह हम चिपिंग कर लेते हैं जिसमें कि हमको अंदाज लग जाता है कि ये ठीक कितना वो दिखा। ये फेरो स्कैनर है जिससे हम रब करते हैं इसको, इस कॉलम पे रब करेंगे, इसको फिर कंप्यूटर पे लेके जाएंगे तो ये वर्टिकल बार्स दिखाएगा, फिर जब इसको हॉरिजॉन्टली रन करेंगे तो ये रिंग की स्पेसिंग दिखाता है। इसी तरह से स्लैब में भी करते हैं, स्लैब में भी हमको अगर मेन बार और सेकेंडरी बार का स्पेसिंग देखना है तो वो हम इससे देख सकते हैं। अब दूसरा एक कारण, शरद सर, ये जो है, ये जो स्कैनर है, ये कितने डीप तक स्कैनिंग कर सकता है कंक्रीट में? ये मुश्किल से 6 इंच तक कर सकता है, 150 mm तक। अच्छा। और इसमें अगर हम मेन बीम के अंदर करते हैं तो बीम में अगर हमारे पास जैसे सेकेंडरी में जो स्टील होता है ना, वो इसमें पता नहीं चलता है, या कॉलम में तो नॉर्मली सेकंड लेयर में स्टील होता नहीं है, हाँ। पर बीम में जो सेकंड लेयर में स्टील होता है वो नहीं पढ़ सकते इससे। ओके ओके, तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा बीम में, तब जा करके पता पड़ेगा शायद। नहीं, बीम में क्या होता है ना कि जैसे मान लो सेकंड लेयर में तो अगर आपने साइड से भी किया तो सेकंड लेयर में ऐसे नहीं ना कि लेफ्ट और राइट साइड में दो ही साइड स्टील डला होगा, वो बीच में भी होता है ना उसमें सेकंड लेयर का स्टील। हाँ, तो अगर स्टील के पीछे का स्टील कोई होगा तो उसको रीड नहीं कर सकता है। ठीक है। अब ये कार्बोनेशन टेस्ट होता है, इसमें जब हम कोर निकालते हैं कंक्रीट का, तो कोर निकाल के फिर लैब में जाता है, लैब से इसमें हम ये कंक्रीट का रस्टिंग चेक करते हैं कि स्टील में जब रस्टिंग हुआ तो कंक्रीट को उसने कितना इफेक्ट कर दिया। इसके बाद में फिर ये कोर कटिंग का मशीन है। कोर कटिंग का मशीन होता है कि हम कंक्रीट के अंदर से कोर का सैंपल्स निकालते हैं। हम चूंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से इसको करते हैं तो ज्यादा, हम जैसे नंबर ऑफ टेस्ट में रिबाउंड हैमर और यूपी भी अगर हमने 100 पीस कर लिया तो ये मुश्किल से 8 से 10 जगह करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इससे पार्शियली डैमेज होता है, और जिस जगह से ये डैमेज होता है उस जगह हमें इसको फिल करना होता है तुरंत ही, कि अगर हमने कंक्रीट कहीं से निकाला तो फेरो स्कैनर से हम वो भी यूज करते हैं। जब हम वर्टिकल मेंबर से कोर निकालते हैं किसी भी कॉलम से, तो हम पहले उससे स्कैन कर लेते हैं, उस कॉलम को स्कैन करके हमको ये देख लेते हैं कि कहाँ पे दो कॉलम के बीच में स्पेसिंग है, स्टील दो मेन रेनफोर्समेंट के बीच में, और उसके बाद ही फिर ये हम कोर कटिंग का मशीन वहां पे फिट करते हैं। अगर हमने डायरेक्ट इसको लगा दिया तो ये मेन बार को भी काट देता है, इसमें डायमंड कटर होता है, तो हमको कोशिश ये करना है कि हमारा मेन बार कोई कटे ना। तो हम नॉर्मल केस में जब कॉलम में करते हैं तो कॉलम में ये जो हमारा जैसे लेंथ और विड्थ रेशो होता है ना, तो जो हमारा विड्थ वाला रेशो है उस साइड से करने में बेटर होता है, क्योंकि वहां उम्मीद कम होती है कि वहां स्टील होगा, और नहीं तो स्कैनिंग करने के बाद ही हमको यूज करना चाहिए। ये कोर कटिंग से हम कोर का जो निकालते हैं ऑलमोस्ट 65 mm का होता है, और 150 mm इसकी डेप्थ होती है कोर की। तो 150 mm by 65 mm का कोर निकालते हैं। कोर, हाँ कोर निकालते हैं, मिनिमम साइज ये होना चाहिए। ठीक है, मैं वही पॉइंट सोच रहा था कि स्कैनिंग करने के बाद ही कोर कटिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमें जगह पता पड़ जाएगी कहाँ पे। हाँ, कहाँ कहाँ पे दिक्कत है, मतलब ऐसा ना हो कि हम कोई मेन बार को कट कर दें। करेक्ट। अब ये कोर जैसे बीम से इन्होंने निकाला, बीम में भी कोर ना कोशिश करके हम बॉटम नीचे से नहीं निकालते हैं, टॉप से नहीं निकालते हैं, बिल्कुल स्लैब के बगल से तो वैसे भी नहीं निकाल सकते कि इसमें 3 इंच की जगह होती है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। आप अपने माइक म्यूट कर दीजिए। कौन, जिसका माइक कौन है? सॉरी शरद सर, प्लीज कंटिन्यू।
अब ये ना हाफ सेल पोटेंशियल है, इसमें हम टेस्टिंग करते हैं। जब आप देखते हैं ना कि हमने डायमीटर, तो हमने पहले मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ कहाँ पे स्टील में रस्टिंग हो गई, तो इससे ना परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं कि कितना स्टील हमारा, कितना परसेंट स्टील कम हो गया है। मतलब जैसे मान लो 10 mm का डायमीटर है और हमारा टेस्टिंग के बाद में उसमें 50% डाया कम हो गया और रस्टेड स्टील है, तो हमको टेस्टिंग टाइम पे उस स्टील को कितना यूज करना है, कि हमको उसको 25% मानना है, 30% मानना है, तो उससे ये हम निकालते हैं। इसमें मेन रीवार के ऊपर एक हम ये नोट लगाते हैं और एक लगाते हैं कंक्रीट के ऊपर। इससे हमको ये रस्टिंग मीटर है, इससे हम रस्टिंग निकालते हैं कि कंक्रीट में कितना कितना, सॉरी, रीवार्स में किस किस लेवल तक रस्टिंग हो चुकी है। ये है वो, ये कोर निकाला है, उसके बाद नीचे वो टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास ना मेन किसी बिल्डिंग को जब हमने टेस्टिंग किया, तो टेस्टिंग करने पे हमारे पास उस बिल्डिंग की एक्चुअल स्ट्रेंथ आ गई, कि स्टील आ गया कि कितना उसमें स्टील पहले दिया हुआ है। उसके बाद में हमें ये आ गया कि उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है। इसमें क्या करते हैं हम, रिबाउंड हैमर, यूपीवी और कोर, ये तीनों ऑलमोस्ट टेस्ट हैं जिससे कि हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ ही निकालते हैं, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट निकालते हैं। पर इसमें तीनों टेस्ट की ना अपनी अपनी वो है, मतलब कितना ये ऑथेंटिक है। तो जो कोर कटिंग की स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट एक्चुअल स्ट्रेंथ से 10-15% कम आती है, रिबाउंड हैमर की ज्यादा आती है। तो उसके लिए ना एक अलग से कर्व बनाते हैं जिसमें कि हम रिबाउंड हैमर की रीडिंग डालते हैं और उसकी करते हैं कोर कटिंग की। और एक और हम जो रिबाउंड हैमर और यूपीवी को यूज करते हैं, तो हम पहले ना सारे जगह रिबाउंड हैमर और यूपीवी कर लेते हैं। उससे हमको ये पता चल जाता है कि उससे अंदाज लग जाता है कि किस किस जगह कितनी कितनी स्ट्रेंथ आ रही कंक्रीट की। तो कोर भी हम उसी रेशो में काटते हैं कि जहां पे हमने, जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हमको 100 रिबाउंड हैमर है, 100 हमारे पास यूपीवी है, क्योंकि ये टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, दिखते नहीं है और कॉस्ट वाइज सस्ते होते हैं। तो हम पहले इससे सारा डेटा निकाल लेते हैं कि कहाँ रिबाउंड हैमर कितना, क्या रीडिंग आ रही है, यूपीवी क्या रीडिंग आ रही है, उसकी एक चार्ट बना लेते हैं। और उसी, और कभी भी ना तीनों टेस्ट हमको एक ही एलिमेंट पे करना है। जिस एलिमेंट पे हमने यूपीवी किया उसी पे हमको रिबाउंड करना है, उसी पे कोर काटने हैं। तो हमको तीनों रिजल्ट को कोरिलेट करने में आसान हो जाता है। ओके, कि अगर हम अलग अलग जगह कर दें ना, रैंडम, कहीं पे हमने यूपीवी कर दिया, कहीं कोर कर दिया और कहीं पे रिबाउंड कर दिया, तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि पूरे बिल्डिंग का ना टेंडेंसी किस तरह की है, कि अगर ज्यादा रीडिंग आ रही तो कितनी आ रही है। क्योंकि ये बहुत सारी ना वर्कमैनशिप पे डिपेंड करता है, करने वाले पे भी डिपेंड करता है, मीटर पे भी डिपेंड करता है, और हमको कोरिलेट करने में भी होता है। ये रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होते, पर हमको चूंकि ब्रॉड वो दे रहे होते हैं फील की किस तरह की बिल्डिंग है और कितनी खराब हो चुकी है। तो अगर हम अलग अलग मेंबर पे करेंगे तो पता नहीं चलेगा हमको। अब एक तो पहला हो गया, हमने टेस्टिंग कर दिया। दूसरा ये हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस का। इसमें हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का हमारे पास अगर ड्राइंग्स हैं, तो हम उस ड्राइंग्स में के पहले एक मॉडल बनाते हैं, सारी ड्राइंग उसको, बिल्डिंग को, जैसे नया बिल्डिंग हमको डिजाइन करना हो, उस बिल्डिंग के अंदर जो जो भी हमारे पास अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंशन है, जो पहले मान लो 4 में हमने उस पर्पज से कर रहे हैं कि पहले 4 फ्लोर था, फिर हमने 6 फ्लोर कर दिया, 2 फ्लोर बढ़ाया, तो हम उसके लिए पहले एक्चुअल मॉडलिंग करते हैं बिल्डिंग की। उसमें वो साइजेस डालते हैं जो साइजेस हमारे पास साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। कॉलम का वो साइज डालेंगे, बीम का वो साइज डालेंगे, और जो कंक्रीट का ग्रेड हमारे पास एवरेज आ रहा है, कई बार कम आता है, ज्यादा आता है, तो हम उसको एवरेजिंग करके उसमें कंक्रीट का ग्रेड देते हैं एनालिसिस के टाइम पे। उस एनालिसिस से फिर एक बार हम, जैसे मान लो मुझे, हमें किसी क्लाइंट के लिए देना, तो ये हमें डिजाइन बेसिस रिपोर्ट है। इसमें डिजाइन बेसिस रिपोर्ट बनाते हैं जिससे कि हमने ये देखा कि किस किस फ्लोर पे हम क्या क्या लोड लेने वाले हैं। जैसे मैंने आपको ये डेड लोड के लिए दिखा कि कंक्रीट का ग्रेड हमने क्या एज्यूम किया है, फ्लोर फिनिश की डेंसिटी क्या, कई बार पीसीसी से कोई फ्लोर फिनिश करता है, कोई लाइट मटेरियल से करता है, कोई ब्रिक वर्क यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने डिजाइन बेसिस रिपोर्ट है जो डिजाइन करने के पहले हमको क्लाइंट से अप्रूव करानी होती है कि हम इस तरह की चीजें आपके में यूज कर रहे हैं, जिससे कि बाद में, जैसे कोई बिल्डिंग 15 स्टोरी है, 20 स्टोरी है, तो इसमें छोटी छोटी यूनिट्स के चक्कर में ओवरऑल वेट में बहुत चेंजेस होते हैं। और बाद में भी किसी को, हमारे बाद किसी को, अगर मान लो जो नॉन टेक्निकल आदमी उसको रीड करना है,
तो डिजाइन बेसिस रिपोर्ट से उसको ये अंदाज लग जाता है कि मेरी बिल्डिंग डिजाइन किस तरह से हो रही है, कि कितने फ्लोर इसमें ले रखे हैं, क्या कंक्रीट का ग्रेड लिया हुआ है, क्या इसमें हमने फ्लोरिंग ले रखी है, तो मोटा मोटा इससे आइडिया लग जाता है। और इसके बाद में अगर कुछ किसी को चेंज कराना है तो इसी टाइम पे चेंज करा लेता है। अपने जो नॉन टेक्निकल आदमी होते हैं कि नहीं फ्लोरिंग में मुझे इतना लेना है, या कोई फैक्ट्री वाला है तो मुझे मेरी मशीन का वेट इतना आ रहा है, ये अगर हमारा ये डिजाइन बेसिस रिपोर्ट फ्रीज हो जाता है, उसके बाद हम मॉडलिंग करते हैं। ये मॉडलिंग करने में मैंने आपको ऐसे थोड़ा स्नैपशॉट दिखाया है कि किसी बिल्डिंग को मॉडलिंग करते हैं तो इसमें जो स्लैब का लोडिंग है, ये जैसे अभी हमने बेसिक शायद आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ट्रायंगुलर ट्रेपेजोइडल जिस तरह से हमको लोड दिखता है बुक्स में, हम स्लैब में लोड लगाते हैं तो ये ट्रायंगल ट्रेपेजोइडल दिख रहा है, ये उसी तरह की लोडिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल लोड दिख रहा है कि जो वॉल लोड आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में लगे होते हैं वो हम इस पे लगाते हैं मॉडल पे। इन दोनों के बाद में हमने ये पहले हमने टेस्टिंग कर लिया, टेस्टिंग करने के बाद में हमने मॉडलिंग करा, मॉडलिंग करके हम उस मॉडलिंग से जो भी हमारे पास वो आ रहे हैं डिजाइन का हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम एक जगह लिख लेते हैं सारे के सारे में, कि हमारे इस कॉलम के अंदर इतना हमें एक्चुअल डिजाइन में ये ग्रेड जो प्रोवाइड है उसके कारण से स्टील इतना आ रहा है। अब ये आगे हमारे पास जो ना रिपोर्ट डिजाइन कर मतलब जो एनडीटी करते हैं उसका रिपोर्ट दिखता किस तरह से है। ये लोकेशन डले हुए हैं, जहां सबसे लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट ये लिखा हुआ है, करेक्ट। इसमें लोकेशन डला हुआ है, ये एलिमेंट डले हुए बीम स्लैब कॉलम, फिर ये डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन किस डायरेक्शन में किया। ये एक हमने अभी इस साइड क्या कहता हूँ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे में एक हाउसिंग का किया था, उसका है ये। बेसमेंट लेवल पे कभी भी ना ये जैसे आप देखेंगे 1 2 3 ये टोटल 6 उन्होंने रिबाउंड हैमर की रीडिंग लिया, इनको एवरेज करते हैं, क्योंकि वो रिबाउंड हैमर का डायरेक्शन थोड़ा सा भी चेंज होता है ना उसकी रीडिंग चेंज हो जाती है। तो एक ही पोर्शन में ये हमने 6 जगह करा, उसका एवरेज किया, फिर उसकी सरफेस स्ट्रेंथ से उसको डिवाइड करते हैं, तब ये एक्चुअल हमारे पास स्ट्रेंथ आ रही है। सब राइट में लिखा है, सबसे लाइट में सरफेस स्ट्रेंथ, ये एवरेज हो गया। एक ही पॉइंट पे 4 या 5 जगह 6 जगह जितना किया वो लिखा, फिर एवरेज निकाला, उसके बाद सरफेस स्ट्रेंथ हमें ही निकाल के दिया। दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का है, इसमें भी ना ये रीडिंग उसी के अंदर आती है 2.6 2.93। तो उसमें ना कोड में ये प्रोविजन है कि किस रीडिंग को हमको गुड कहना है, किसको वो कहना है, मतलब कब हमारी वेलोसिटी कम होगी ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग हमको कैसे एसेस करना है कि कौन सा कंक्रीट का मेंबर ठीक है खराब है। इसके बाद में ये अगला है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोर का। ये कोर की देखो ना इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ ही हमारे पास जैसे ये आ रही है 12 16 22 21 आ रही है। राइट में जो मेरा माउस दिखता है लास्ट जो रीडिंग है दिख रहा है लास्ट रीडिंग लास्ट में दिख रही है 12 आ रही है, 16 आ रही है, 21 आ रही है और 15 आ रही है। और इसी की जगह हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो ये इसकी रिबाउंड हैमर की रीडिंग 16 17 19 26 22 ये आ रही है। ये हमने अगर मान लो बेसिक कंक्रीट की स्ट्रेंथ अगर हमने M25 मानी तो ये रिबाउंड हैमर के अकॉर्डिंग तो ये मोटा मोटा ठीक सी दिख रही है, और कोर के अकॉर्डिंग ये ही एकदम कम दिखने पीछे आ गए, वो पीछे जा रहा है, आगे जाइए। कोर के अकॉर्डिंग आप देखो ये 12 है 16 है। वैसे आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम किसी भी बिल्डिंग को ना रेट्रोफिट उसी बिल्डिंग को कर सकते हैं जिसकी जो अगर हमने टेस्टिंग किया, और कोर की स्ट्रेंथ एवरेज स्ट्रेंथ जो हमने डिजायर स्ट्रेंथ मान लो मेरी M25 है, और अगर 85 से कम आ रही है 85% से कम है तो हम बिल्डिंग को रेट्रोफिट ही नहीं कर सकते। एवरेज स्ट्रेंथ अगर मान लो मैंने 20 अलग अलग जगह से मैंने कोर निकाला, अच्छा, और हमारा एवरेज स्ट्रेंथ 85 से कम आ गई, तो हम उस बिल्डिंग को एज पर कोड रेट्रोफिट नहीं कर सकते। मतलब प्रैक्टिकल में हम करते हैं इस तरह से। 85% ऑफ द डिजायर्ड स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए उससे अगर कम है तो रेट्रोफिट कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते एज पर कोड। एज पर कोड, ओके। सो रेट्रोफिटिंग सिर्फ 15% में वर्क करता है। 15% ये एक्चुअल में तो रेट्रोफिटिंग का यूज तभी होता है कि जब हमारे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में कोई हमसे गलती हो जाए, या एक आध मेंबर में किसी मेंबर में या कहीं पे हमको वो बिल्डिंग को ठीक करना हो, कि किसी की अगर हमने जैसे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमने कोई स्लैब डाला, उस स्लैब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम आ गया तो हमने उसको रेट्रोफिट कर दिया, या कोई कॉलम में मिक्सिंग गलत हो गई
करेक्ट। अब चूंकि प्रैक्टिकल में हमको कई बार पूरी का पूरा बिल्डिंग भी करना होता है, क्योंकि तोड़ नहीं सकते हैं, टेनेंट जो लोग रह रहे हैं वो खाली नहीं कर सकते हैं, तो कॉस्टिंग इतनी ज्यादा होती है। तो वो है। अब दूसरा ही हाफ सेल पोटेंशियल का, जिस साइड राइट हैंड साइड में देखें ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोजन, ये इस तरह का 50%, 42%, 45%, ये इस तरह का जो कोरोजन है ना, ये आपको द्वारका में बहुत सारी बिल्डिंग में देखने को मिलेगा, बहुत सारी बिल्डिंग। ओके। अगर पूरी बिल्डिंग हम द्वारका में कभी टेस्टिंग, प्रॉपर टेस्टिंग करने लगे, तो मुझे लगता है शायद 30-40% तो हमको तोड़नी पड़ेंगी बिल्डिंग, और इतनी हाई राइज यहाँ बने हुए हैं। दैट इज अ लॉट, 30-40% बिल्डिंग तोड़ने पड़ेंगे। अभी भी जो, जैसे अभी आपने सुना होगा ना, वो चिंतल वाला जो दिक्कत हुआ था, हाँ करेक्ट, फ्लोर कोलैप्स हुआ था, हाँ उसके बाद अभी हमने, मैं आपको सोसाइटीज का नाम नहीं लूंगा, पर 32 स्टोरी के हमने 3-4 बिल्डिंग अभी टेस्ट करे हैं, जिनकी अपनी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 50% है। सर, जो आपने ये मेंशन किया चिंटल वाला, अब तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया है टू डिसमेंटल दैट, बट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, कैन दिस बी सेव्ड? आई मीन द डैमेज स्लैब्स को रेट्रोफिट करके बचाया जा सकता है क्या? रेट्रोफिट का ना मेजर प्रॉब्लम क्या है कि मान लो मैं किसी भी बिल्डिंग को रेट्रोफिट करता हूँ, तो उसको रेट्रोफिट करने के लिए ना हमको, जो मैं, जैसे आप मान लो कोई फ्लैट में रहता है, तो मुझे रेट्रोफिट करने के लिए उस कॉलम को ना चारों साइड से जैकेटिंग करनी है। हाँ जी। तो मैं जैकेटिंग करने के लिए आपके कमरे के अंदर, जहां जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, उससे मैं स्लैब तोड़ूंगा चारों साइड से, हाँ जी। फिर उसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो आपकी ना फ्लोरिंग सब कुछ टूट जाएगी। और कभी भी रेट्रोफिट के अंदर ना, जो हमारा जंक्शन है बीम और कॉलम का, उसमें हम डक्टाइल डिटेलिंग के अकॉर्डिंग हम उसको रेट्रोफिट कर नहीं सकते हैं। ठीक है। वो प्रॉपर नहीं हो सकता है करने को, मतलब अगर 100 मेंबर है, 100 मेंबर से मुझे 2-3 करने तो मैं कर सकता हूँ, पर ऐसे नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी बिल्डिंग कर दें। करेक्ट। वो दिक्कत होता है। इसके बाद में ये क्या होता है कि हमने ना, जैसे किसी बिल्डिंग को अभी जब दिया, तो रेट्रोफिटिंग की कॉस्ट एक्चुअल कंस्ट्रक्शन से ज्यादा होती है। अगर नॉर्मल कोई कॉलम होता है, मैं नया कॉलम कास्ट करूंगा 3 मीटर हाइट का, अगर मान लो 230x450 का, तो उसकी एवरेज कॉस्टिंग अगर 35,000 45,000 होगी, तो उसी को जब मैं रेट्रोफिट करूंगा उस कॉलम को, तो उसको 1 से 1.5 लाख रुपए लगते हैं। तो नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग को जब रेट्रोफिट करना होता है, तो उसकी ना कैटेगराइज कर देते हैं कि जो हमारा सीवीआर है उसको पहले करा लेते हैं, फिर सेकंड स्टेज में कर लेते हैं कि जो कम सीवीआर है और जो चल सकता है कुछ दिन, तो उसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से जैसे ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और रैंप है, इसमें हमने कितने टोटल टेस्ट कितने करे, मैंने ये लिखा, फिर उसमें से ये अलग अलग करके डिवाइड करके हमने कितने मेजर हैं, कौन से माइनर हैं, कौन से बिल्कुल अभी चल जाएंगे, तो उसको बिल्डिंग को कैटेगराइज करके उसके अकॉर्डिंग रेट्रोफिटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं नॉर्मल केसेस में। ओके। अब ये है रेट्रोफिटिंग का ड्राइंग, जिसमें कि ये अभी हमने एक द्वारका का एक बिल्डिंग किया था, जिसमें कि आप देख रहे होंगे ना, जिसमें चारों साइड से डार्क कलर दिख रहा है आपको जी। ये ऑलमोस्ट 100% कॉलम है जो कि रेट्रोफिट होने हैं। तो ये तो सभी हैं, सभी हैं, सभी हैं इस तरह से कि सारे के सारे कॉलम रेट्रोफिट होने। चूंकि हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है, हम इस तरह से कोई कर नहीं सकते हैं कि मैं 50% अपनी मर्जी से कर दूं। ये उस तरह से ये रेट्रोफिटिंग का नॉर्मल 99% केस में, जैसे हमारा एक कॉलम ये देखेंगे ना सब, जहां पे CF लिखा हुआ है, 330x700 का कॉलम है। कई बार हमको कॉलम में जब तक चारों साइड से जैकेटिंग नहीं होगा, ये कॉलम का जो एक्चुअल यूज है वो 50-40% होता है, पर चूंकि रेट्रोफिटिंग कंडीशनल है, तो इसीलिए हम ये 3 ही साइड से कर रहे हैं, कुछ ये चारों साइड से कर लेते हैं। तो वो साइड के ऊपर देख के उसके अकॉर्डिंग, मतलब मेन ये कॉलम का रेट्रोफिटिंग का ड्राइंग है जी। ये पूरे ही कॉलम है। अब इसके बाद में ये मैं बताता हूँ मेथड ऑफ रेट्रोफिटिंग होते क्या क्या है। रेट्रोफिटिंग इज द मॉडिफिकेशन टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू मेक देम मोर रेजिस्टेंट। इसमें ना जैकेटिंग होता है। जैकेटिंग इज द मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड मेथड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बिल्डिंग। जैकेटिंग ना 3-4 तरह का होता है। एक कंक्रीट का होता है, दूसरा स्टील का होता है, तीसरा कार्बन रैपिंग का होता है। ओके। तो अगर हमारी किसी बिल्डिंग के अंदर डिजायर्ड स्ट्रेंथ से 50% स्ट्रेंथ कम है, तो हम ये कंक्रीट का जैकेटिंग करते हैं।
और अगर 30-40% कम है तो हम स्टील का जैकेटिंग कर लेते हैं, और कार्बन में जब हमारे पास सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है, मतलब कंक्रीट खराब है, स्टील ठीक है, तो ये टाइप ऑफ जैकेटिंग में ये रेइंफोर्समेंट कंक्रीट जैकेटिंग हो गया, दूसरा स्टील जैकेटिंग, तीसरा ये कार्बन रैपिंग। ये स्टील जैकेटिंग का इस तरह से दिखता है। इसमें हमने ना मेन चारों साइड से जो उसका कवर था वो हटा दिया। दूसरा इसका जो भी लूज कंक्रीट है वो हमने हटाना होता है। अगर मान लो कहीं से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, लूज कंक्रीट को हटाना होता है। करेक्ट। मदर्स जो हमने प्लास्टर है वो हटा दिया जितना भी, तो मदर कंक्रीट पे ही करना होता है इसको। इसमें ये आप देख रहे होंगे जहां रेड कलर का ये दिख रहा है ना, ये बार के ऊपर ये रीवायरिंग किया हुआ, इसको हम शियर कनेक्टर कहते हैं। जो शियर कनेक्टर हमारा पुराना कंक्रीट से नए कंक्रीट को स्टील को बाइंड करने के लिए होता है। दूसरा इसमें हमेशा ये देखना है कि जब भी हम ये जैकेटिंग करेंगे ना, तो हमारे इसमें ना हैकिंग होनी चाहिए कंक्रीट के अंदर। अगर हम स्मूथ सरफेस पे कभी भी कंक्रीट को चिपकाएंगे तो वो पेज दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगा। दूसरा इसमें जब हमने पहले तो ये शियर कनेक्टर लगाए, फिर ये वर्टिकल बार हमने दिख रहे हैं, वो वर्टिकल बार लगाते हैं। शियर कनेक्टर लगाने के लिए हमको ये केमिकल बॉन्ड वो आते हैं, अलग अलग केमिकल, जिसमें कि ये अगर हम किसी बार को इसके अंदर ड्रिल करके लगाते हैं, एक रीवार करने का ना, कंक्रीट में रीवार करने का एक प्रोसेस होता है कि हम जितने डायमीटर का बार हमको लगाना है, अगर 12 डायमीटर का हमको लगाना है तो हम 14 डाया का ही उसमें होल करेंगे। उससे अगर हम बड़ा होल कर देंगे ना तो भी दिक्कत है, और छोटा करेंगे तो जाएगा ही नहीं। अगर हमने 40 mm से, मान लो मैंने 18 mm डाया का रीवार कर दिया और मुझे लगाना 12 mm डाया का है, तो जो मैं उसमें केमिकल लगाऊंगा ना, वो केमिकल उसका बॉन्डिंग पकड़ेगा ही नहीं वो, अगर ज्यादा केमिकल लग गया तो। और कम लग गया तो पकड़ना ही नहीं है उसको। तो हमको इसको प्रोसेस इसका क्या होता है कि पहले हम ड्रिल करते हैं, उससे एक हायर डाया में, मतलब 12 का 14 करेंगे। उसके बाद में उसमें से जितना भी डस्ट होती है, उस डस्ट को हम ब्लोअर से निकालते हैं। और अगर किसी ये वेट कंडी जगह पे है तो वेट का केमिकल अलग आता है, ड्राई का केमिकल अलग आता है। कोशिश ये करते हैं कि हम इसको ड्राई कर लें, और उसके बाद में फिर ये रीवार करते हैं। रीवार करने के बाद जितना हमने रीवार किया होता है, इस रीवार को, इसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, इसके लिए एक ना पुल आउट टेस्ट होता है। हमने जितने रीवार कर दिए उसमें से, मान लो मैंने 200 रीवार किए, तो कोई भी 2 या 3 उसको रीवार को पुल करके देख लेते हैं कि हमारा वो अंदर बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई है। दूसरा, ये रीवार सब जगह हम नहीं कर सकते। अगर मान लो मेरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ ना पहले से ही कम है, करेक्ट, और अगर हमने उसके ऊपर रीवार कर दिया तो बॉन्ड नहीं पकड़ेगा, या किसी क्रैक कंक्रीट पे कर दिया तो भी नहीं पकड़ेगा वो। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमारे पास, मान लो अगर M25 है तो 15 तक हो, 10, 15, 12, ऐसा कुछ बेसिक सी स्ट्रेंथ हो जिसके कारण से वो पकड़ ले उसको। तो दूसरा आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आप कहना चाह रहे हैं कि ये केमिकल लगाने के बाद, ये मेंबर लगाने के बाद जो है, जो रीइंफोर्समेंट का टुकड़ा है, ये कंक्रीट के साथ वैसे बॉन्डेड हो जाता है जैसे कि उसके इंट्रिंसिक स्टील का ही हिस्सा हो। हाँ 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 हाँ, करेक्ट। इसके बाद में ये हमने पहले ये शेयर कनेक्टर लगाते हैं। शेयर कनेक्टर लगाने के बाद में इसमें ना, जैसे जहां जहां पे स्टील हमारा रस्टिंग हो चुका होता है, तो उस रस्टिंग वाली जगह पे हम पहले लगाते हैं, उस स्टील पे ना एंटी रस्टिंग कोट पहले लगाते हैं, रस्ट रिमूवर। रस्ट रिमूवर कोटिंग से क्या होता है कि जो उसके ऊपर सरफेस पे जितना भी रस्ट लगा होता है वो एक लेयर बन के निकल जाता है। उसमें जब हम सैंड पेपर से उसको रब करते हैं तो सारा स्टील के ऊपर जितनी भी रस्टिंग है, 80-90% रस्टिंग निकल आती है। जो रस्टिंग कंक्रीट के बैक साइड में हो जाती है, जहां से हमने सामने के साइड से तो हम रस्टिंग निकाल सकते हैं, और पीछे की साइड से उसकी रस्टिंग नहीं निकलती है, जिसके कारण से रेट्रोफिटिंग की लाइफ हमारी 10 से 15 साल ही होती है। क्योंकि पीछे हमारे में रस्टिंग ना हमारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद भी चलती रहती है। तो एक तो हमने चिपिंग करनी है। चिपिंग करने के बाद में जो मेन लूज कंक्रीट है, अगर ज्यादा बड़े वॉइड्स हैं तो उनको माइक्रो कंक्रीट से उसको फिल कर देना हमको। उसके बाद में हमको ये शेयर कनेक्टर लगाना है। शेयर कनेक्टर लगाने के बाद में हमको जहां जहां पे अगर स्टील एक्सपोज दिख रहा है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था जिसमें रूफ में स्टील पूरा एक्सपोज हो चुका था, उस स्टील पे हमको पहले रस्ट रिमूवर लगा के उसका पुराना रस्टिंग निकालनी है। फिर एक एंटी रस्टिंग कोटिंग का केमिकल आता है जिससे कि जो जितना जिस लेवल तक रस्टिंग है वो रुकी रहे।
तो वो एंटी रस्टिंग लगानी है। फिर हमको कंक्रीट, नए कंक्रीट और पुराने कंक्रीट को जोड़ने के लिए एडेसिव आते हैं जो बॉन्डिंग एजेंट कहलाते हैं, वो हमको बॉन्डिंग एजेंट उस पर अप्लाई करना है। और बॉन्डिंग एजेंट लगाते टाइम हमको ये रखना है कि हमारे पास जो हमको इसमें कंक्रीटिंग करने वाले हैं वो 2 घंटे के अंदर बॉन्डिंग एजेंट हो जाना चाहिए। नहीं तो कभी आप साइट पे देखोगे तो बॉन्डिंग एजेंट ना पॉलीथीन जैसा होता है, अगर वो सूख गया मतलब 2 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो बॉन्डिंग करने की जगह उल्टा एक पॉलीथीन का लेयर क्रिएट कर देता है वहां पे, जिसमें कि नई और पुरानी कंक्रीट को हम जोड़ने के लिए हमने लगाया था, उल्टा एक पॉलीथीन बन गया तो वो बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं होगा। करेक्ट। ये जैसे हमने 1-2 जगह जहाँ पे बीम का किया कि बीम में हमने ये रूफ लेवल पे भी हमने रिंग लगा दिया और ये वो करा। अब इसमें जब इस तरह का हम करते हैं इस तरह माइक्रो कंक्रीट भरनी होती है। माइक्रो कंक्रीट की क्या वो होती है कि मान लो मेरी अंदर की कंक्रीट की स्ट्रेंथ M10 M15 है और हमको चाहिए M40, तो माइक्रो कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट हम मिलाते हैं वो 10 mm का ही एग्रीगेट होता है और वो प्री मिक्स कंक्रीट आता है उसमें बैग्स में बना हुआ, उसमें सिर्फ हमको पानी मिलाना होता है और वो मिलाना होता है एग्रीगेट 25% एग्रीगेट। उसको जब भी हम पोर करेंगे ना तो उसको हम नॉर्मल मग से भी पोर कर सकते हैं, उसमें वाइब्रेटर का ही वो नहीं होता है। और चूंकि आप देख रहे होंगे इसमें जैसे बीम के बीच में ना थोड़ा सा गैप है बिल्कुल, अब इसमें अगर मैं नॉर्मल कंक्रीट डालूंगा ना तो ये पकड़ेगा ही नहीं इसको। तो 90% केस में माइक्रो कंक्रीट ही करते हैं। माइक्रो कंक्रीट की अपनी स्ट्रेंथ अगर आप कभी चेक करेंगे तो 70-80 तक होती है, M80 तक। हाँ। ओके। तो वैसे नहीं तो नॉर्मल अगर हम मतलब 25 एग्रीगेट यूज कर लेते हैं 25% तो हमको 45-50 तो आराम से मिलती है M50 है। तो ये हम माइक्रो कंक्रीट यूज करते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर हमारा अंदर वाला कॉलम का कोई भी रिइंफोर्समेंट मान लो स्टील काम नहीं, कंक्रीट की 0 स्ट्रेंथ भी हमने मान लिया तो भी बाहर ना एक लेयर जैसा बन जाता है जैकेटिंग करने का, जिससे हमारा कॉलम बच जाता है, मतलब बिल्डिंग को जो स्ट्रेंथ है वो देनी हो जाती है। अब जो हमने पहले टेस्ट करे थे उसमें और अभी में हम क्या करते हैं, मान लो मेरी बिल्डिंग को हमने पहले टेस्ट करा जिससे स्ट्रेंथ आई M15 की और हमको चाहिए थी M50, तो M15 और M50 के बीच में से ना वो स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं कि पहली बार ये M15 हो गई तो हम अगर M35 भी डालेंगे तो हम वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव कर लेंगे। और इसको पोर करने के लिए जब इसमें हम शटरिंग लगाते हैं तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी दूर पे 1-1 मीटर पे ना कोर काटते हैं और कोर काट के छत की साइड से इसमें कंक्रीट पोर करते हैं, तो वो कंक्रीट इतनी पतली होती है कि वो नीचे सारी जगह चली जाती है। तो इसमें पता कैसे चलता है कि इवनली सब जगह गया है? सब नॉर्मल में जब इसको हम ऊपर से कंक्रीट भरते हैं ना तो नीचे इसमें एक शटरिंग, मतलब जो आदमी होता है उसको आप नीचे से ना वो करते हैं, उसमें साउंड देते हैं, मतलब ठोक के देखते हैं ना तो 90 वो अपने आप वो चूंकि इतना पतला होता है पानी के जैसा ना, तो 99% सभी जगह वो चला ही जाता है जब ऊपर से पोर करेंगे आप। तो साइड से भी कहीं से भी इसको पोर करेंगे ना तो वो शटरिंग को नॉक करके देख लेते हैं कि कितना इसमें आवाज आ रही है, अगर कहीं खाली होता है तो फिर से उसमें भर देते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक एक आइडिया तो होता ही है कि कितना वॉल्यूम हाँ, कंक्रीट वो भी होता है। और दूसरा इस शटरिंग को जब लगाने के बाद में ना चारों साइड से उसको पीओपी से बंद कर देते हैं कि जरा सा भी निकल ना सके। और ये शटरिंग ओपन कैसे करते हैं? ओपन कब करते हैं? जैसे नॉर्मल कंक्रीट को स्ट्रेंथ चाहिए होती है उतना, या इसको नहीं, डिफरेंट? ये जल्दी कर लेते हैं इसको। तो अगर आप मतलब 7 डेज में भी देखेंगे ना तो ये अपनी कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेती है माइक्रो कंक्रीट तो। जैसे बाकी टाइम भी क्योरिंग करते हैं ऐसे ही इसकी भी क्योरिंग वैसे ही होगी? हाँ, क्यूरिंग तो होगी पर स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। ठीक ठीक। ये स्टील जैकेटिंग है। कहीं पे अगर हमको मान लो स्टील जैकेट वो नहीं करना है तो स्टील जैकेटिंग भी कर देते हैं। इस केस में जब हम डिजाइन करते हैं ना तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाते हैं, फिर हम सारा का सारा स्टील में ही डिजाइन कर देते हैं इसको। फिर तीसरा ये कहीं कहीं पे अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम आ रही है और स्टील ठीक है तो ये कार्बन रैपिंग है। इस कार्बन रैपिंग का फायदा ये है कि इससे किसी भी चीज की ना विड्थ नहीं, वो नहीं, थिकनेस नहीं बढ़ती है, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है। और चूंकि ये टेंसाइल फाइबर होता है तो इसके अंदर इसका ड्रॉबैक ये है कि जब इसमें किसी ने भी अगर इसको जहां से पंचर कर दिया
तो ये वहीं से वो हो जाता है, खुल जाता है, वहां उसकी स्ट्रेंथ वहीं से 0 होने लगती है। और दूसरा फायर में तुरंत सबसे पहले फायर पकड़ता है। तो इस पे ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर भी लगाते हैं? हाँ, प्रोटेक्टेड लेयर लगाएंगे, नहीं तो फिर ये तो वो हो जाएगा। पर फिर भी एक बार जैसे हमने कर दिया, इसको जैकेटिंग कर दिया, और हमारे 10 साल बाद किसको पता चलता है कि इसके पीछे क्या है, तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत करता है। पर बस फायदा ये है कि तो तुरंत हो जाता है, कि कितना भी आप इसको रब करो और जल्दी प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस जल्दी हो जाता है, देखने में हमारा वॉल्यूमेट्रिक बढ़ता नहीं है कुछ भी। और इसके ऊपर प्रोटेक्शन प्लास्टर कर लो, या गुनाइटिंग कर, जो कुछ गुनाइटिंग तो नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन प्लास्टर करके इसको छुपा सकते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी। I have a question on the previous slide when we were doing jacketing for the beam. हाँ, Sir, if shuttering is all around on 3 sides and then there is a slab above, so what would be the method of curing? नहीं, इसमें पोरिंग करने के लिए स्लैब में से कोर काटना पड़ेगा एक एक Curing, sir. क्यूरिंग तो हम शटरिंग निकाल देंगे ना। But shuttering we are taking out after 7 days. Yes. हाँ, So then for that 7 days we don't require curing. नहीं, उस टाइम तो इसका लिमिटेशन है कि उसको कर नहीं सकते। Achha. So can we use some admixtures or something which is maybe curing का वो issue फिर solve हो जाए, or any other method? नहीं, एडमिक्सचर तो यूज कर सकते हैं। This could be one point for the curing, because there are other method of curing without using water. So can that be a शरद सर, okay, thank you sir. शरद सर, ये जो कंक्रीट है जैसे कॉलम को हम रीबारिंग करने के बाद इसमें कंक्रीट पोरिंग कर रहे हैं, तो इसके तो कॉलम की शटरिंग हम 2-3 दिन में खोल देते हैं और अगले दिन ही खोल देंगे। कॉलम की तो खोल देंगे, बीम का दिक्कत रहेगा। हाँ, बीम की दिक्कत रहेगी। कॉलम की शटरिंग तो कॉलम तो अगले दिन ही खोल देते हैं सर। वर्टिकल मेंबर का तो खोल देंगे। हाँ, मतलब हम तो नेक्स्ट डे ही खोल देते थे और उसके हाँ। बाद फिर उसकी क्योरिंग होती थी। तो बीम में दिक्कत पड़ सकती है, लेकिन कॉलम में दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज व्हाट आई अज्यूम सर। अब ये मेजर पिक्चर्स हैं, जैसे अभी एक सोसाइटी का हम कर रहे हैं, इसमें इस कॉलम को जैकेटिंग करने के बीच में हमने ये पहले जैक लगाए उस बिल्डिंग को होल्ड करने के लिए, क्योंकि इसकी अपनी स्ट्रेंथ पूरी खत्म हो चुकी है। इसको जैसे ही हम तोड़ेंगे तो बैंड कर जाएगा पूरा पूरा। तो दोनों साइड्स इसमें जैक लगाए हैं, फिर बीच में प्रॉप लगाए हैं। ये एक जैक का कैपेसिटी ऑलमोस्ट 25 टन का है, और इस जैक से वॉट लेवल करके इसको पूरा वो कर दिया है, होल्ड कर दिया है। ये उसको रेट्रोफिटिंग करने के बाद में ये कॉलम जो आपको दिख रहा है, इसमें कॉलम का साइज बढ़ गया है, जैकेटिंग है। ये पीतमपुरा एक बिल्डिंग है इनका। ये जो हमने नीचे फुटिंग के लेवल पे किया है, इस फुटिंग के लेवल पे आधा आधा कॉलम किया है, पहले इतना किया, इसके बाद में ऊपर ये करेंगे। That's it. सर, एक दो सवाल थे मेरे जो कि कोई स्टूडेंट्स पोस्ट कर रहे थे कि जैसे पूरी बिल्डिंग को रेट्रोफिट करते हैं तो कॉलम के ऊपर जो जैकेटिंग करते हैं वो क्या नीचे से लेके ऊपर तक चलती चली जाती है, मतलब उसका रीइंफोर्समेंट नीचे से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप बीच में से किसी एक फ्लोर पे जैकेटिंग कर दें। जैकेटिंग हमेशा नीचे फाउंडेशन लेवल से ही होगी और ऊपर तक ही होगी वो। करेक्ट। और क्या हमको इसका फुटिंग भी बनाना पड़ेगा जैकेटिंग के साथ साथ? नहीं, अब उस केस में क्या होता है कई बार ना, कि अगर मान लो मैंने फुटिंग का, बिल्डिंग हमारी 4 स्टोरी बिल्डिंग है और उसमें हमको 2 स्टोरी बिल्डिंग का एक्सटेंशन करना है ऊपर, तो जब पहले प्रीवियसली जो बिल्डिंग डिजाइन किया होगा वो बिल्डिंग तो फुटिंग भी 4 स्टोरी के लिए डिजाइन होगा, तो उस टाइम पे हमको फुटिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। वो चारों साइड से फुटिंग हमको पहले एक्सकेवेट करनी होगी, फिर उसमें से 6-6 इंच बढ़ा के, फिर जो उसके अंदर जो मेन रेनफोर्समेंट दिया होगा उस मेन रेनफोर्समेंट में रीबार करेंगे और उसका फुटिंग का साइज बढ़ाएंगे। करेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली फुटिंग से लेकर के कॉलम को हम जैकेटिंग शुरू करेंगे और पूरी बिल्डिंग को नीचे से लेकर के ऊपर तक हमारी जैकेटिंग जाएगी। हाँ, करेक्ट। एनी अदर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम? क्या शरद सर,
सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर रेट्रोफिटिंग जिस भी कॉलम की हम रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं, क्या उसके बाद हम उस कॉलम की क्या पूरी स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं? जैसे कि अगर मेरे टोटल बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर या 2 स्टोरी बिल्डिंग है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 10 हैं और मुझे एटलीस्ट 5 कॉलम्स की रेट्रोफिटिंग करनी है, और हर कॉलम पे जो एक्चुअल लोड डिजाइन था वो था फॉर एग्जाम्पल 100 kg का, तो क्या आफ्टर रेट्रोफिटिंग हम क्या 100 kg वापस पूरा गेन कर पाते हैं, या कुछ परसेंटेज होती है कि मैक्सिमम इतने परसेंटेज तक ही हम रेट्रोफिटिंग के बाद उसकी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया था ना कि एज पर कोड तो हम उसी बिल्डिंग को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं जिसमें 15% एफिशिएंसी है। अच्छा 15%। हाँ, पर एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता है। हम मार्केट में ऑलमोस्ट 50-60% तक भी गेन कर लेते, क्योंकि ये माइक्रो कंक्रीट जब मैंने जैकेटिंग किया ना, अगर मान लो मेरी कोई बिल्डिंग में किसी कॉलम पे 100 टन लोड आना ठीक है। हाँ है और मुझे उसमें 200 टन देना है, हाँ और हमारी बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है, नई ठीक बिल्डिंग है। बनाई थी मैंने, 4 फ्लोर के लिए बनाई थी, और अब मुझे उसमें 4 फ्लोर और ऐड करना है। तो जो जब हम नीचे स्ट्रक्चरल मेंबर में कॉलम का साइज बड़ा करेंगे ना, तो हम उसमें उतना मेन रेनफोर्समेंट उतना ही डाल देंगे जो हमको दोनों को मिला के चाहिए था। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। और हमने जो कंक्रीट का भी, अगर मैंने चारों साइड से उसको 3 इंच, जैसे मान लो 75 में मैंने एक्सटेंड किया ना, मेरा कॉलम का साइज बहुत जो टोटल देखेंगे एरिया ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ तो हम उससे पूरा का पूरा भी गेन कर सकते हैं, मतलब अच्छा जो पूरा चाहे पूरा हम गेन गेन। कर सकते हैं। ओके ओके सर। Hello, can you hear me? Hello. Yes. Yeah, this one. Sharad ji, you have shown one picture, and which is a very common problem in our houses and flats, that because of seepage in toilets, kitchens, or in rooms under the terrace, that bottom cover falls down after dusting of the sunken slab का ना sir? in some cases. हाँ. So how to deal with that? I mean, this is a very common problem in our houses, flats. So how to deal with that? Because that's a very small level of, but that's a day-to-day problem. I think we all face. उसमें तो करना वही पड़ेगा, जैसे पहले कई बार क्या होता है ना, हम किसी बिल्डिंग को जब हम रेट्रोफिट करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम सीपेज का जो है, सीपेज को जहां से भी अगर टॉयलेट्स के अंदर आ रहा है, हम पहले वो सीपेज बंद करना होगा। उसके बाद किस लेवल तक आपका वो हो रहा है, क्योंकि अगर सोसाइटीज के अंदर ये दिक्कत है तो हम प्रॉब्लम होती है ऊपर के फ्लोर से, और हम रहते नीचे हैं, तो उस केस में अगर मतलब कितना खराब हो चुका है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो ज्यादा खराब हो गया है तो बेटर है कि हम नया कास्ट कर लें, कि उस पर डिमोलिश करें। अगर रीइंफोर्स है वहां पर इंटैक्ट और हमको नीचे से उसको कवर करना है, नीचे से कवर करना है, तो अगर नीचे से अगर आप कवर करेंगे ना उस रेनफोर्समेंट को, तो आपको नीचे ना दोबारा रेनफोर्समेंट बांध के पोर आप ऊपर से ही करना पड़ेगा। आपको पोरिंग जो करनी है ना कंक्रीट की, वो ऊपर से ही करनी पड़ेगी, आप नीचे से पोरिंग नहीं कर सकते हैं। कई लोग ऐसे सुपरफिशियल वे में ना उसमें गुनाइटिंग करा देते हैं। गलत होता है बिल्कुल। वही कह रहा हूँ मैं कि नॉर्मल प्रैक्टिस है, या वो डबल टाइम एक बार पहले वो उसको बदरपुर कोर्स उसका करके प्लास्टर फिर उसको फिनिश कर देते हैं। पूरा गलत है उसमें। तो और क्या दिक्कत है कि अभी तो कम से कम आपको रेनफोर्समेंट दिख रहा है कि रोज गिरेगा, फिर आपको दिखेगा नहीं और एकदम से पूरे ही कोलैप्स होगा। लाइटिंग और नीचे से प्लास्टर करना तो समझ लो पूरा बिल्डिंग को कैंसर है और हमने देखना बंद कर दिया। समझ गया। अच्छा, जो बॉन्डिंग आप कोई बॉन्डिंग कोटिंग वगैरह लगा के नीचे से करें जिससे कि वो नीचे उसका कवर नहीं, अगर आप कंक्रीट नहीं कर सकते ना उसमें नीचे के कंक्रीट से नहीं होगा वो, बेसिकली मोटर को या प्रेशर से कोई यूनाइटिंग या नहीं, अगर थोड़ा कम है ना तो तब तो एक ना पॉलीमर मोटर प्लास्टर आता है और पॉलीमर मोटर कंक्रीट आती है। अच्छा, अगर कम है तो अगर जो मैंने दिखाए थे कि पूरा का पूरा खत्म हो गया उस केस में करेंगे तो मतलब नॉर्मल प्लास्टर से तो बेटर है कि वो कर दें पॉलीमर प्लास्टर। पर अगर ज्यादा है तो फिर दिक्कत करेगा। जी, ओके, थैंक यू। Any other questions coming?
I think the students must be overwhelmed by the information they're getting. No, sir, actually बहुत अच्छी और आसान तरीके से सारी इंफॉर्मेशन मिली और बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे बिल्डिंग्स में डिके है और कितने तरीके का है, इवन डिके की इंटेंसिटी, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस, एनडीटी भी बहुत अच्छे से समझाया शरद ने. इनफैक्ट शरद ने हमको 2 बिल्डिंग्स के लिए गाइड किया था कि कैसे करो. So he is very pertinent and very clear about his ideas. So I'm very happy that I could ask him to spend some time here. उन्होंने थोड़ा समय हम लोग के साथ बिताया और आने वाले समय में ये बच्चे जब आर्किटेक्ट्स बनेंगे तो ये परेशान नहीं होंगे डिटेरियोरेटिंग बिल्डिंग्स को देख करके, and they'll find a solution. Rajiv Sharma has a question. Yes, Rajiv, please. Sir, if we can see the last slide, it will be very helpful for us. Okay, the last slide. Shirad sir, last slide दिखा दीजिए. इसको भेजने में जल्दी. Is it good? अच्छा, last slide. Now it's moving. So that we can have that or the contact details. Actually, I am looking for the contact details so that in future we can. Okay. Connect. So I have forwarded the complete profile of Sharad's organization, Sanrachna Consultants, to the faculty groups. So you can actually contact him there. Sharad sir, वो last slide जिसमें contact details है देखने Rajiv को. Yes, this one. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So thank you, Sharad sir. This was such a nice, lecture for all of us, and I really thank you for spending time with us at AIT SAP. आप इधर आएंगे तो हम आपको मतलब एक physical lecture के लिए भी बुलाएंगे, but my greed was that I should be able to record every bit of it and put it up so that everybody can look at it and understand how to process, and everybody should come to you for help. So thank you so much. Thank you. Should I end the meeting? Yes, please. Yeah. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir.